Hi, this is Jale Sarhadi and you're watching me on Glam Digital Magazine. Okay, so I am part of one particular story in Sia series, which is currently running on Green channel. Of course, you must know Green and you must know Sia series. There are bouquet of amazing episodes and stories, and the one that I did was called Baraks. It was written by Zishan Ilyas, and Zishan Ilyas was also incidentally the director of it. I was playing one of the central characters, and there was Noor Zafar also. There was Zafar Khan playing another central character. I will not go into the story, but this was something that I've never done before. There were costumes involved, there was brilliant makeup involved, it was full-on grandeur that was there in this particular episode, and this was an episode where there's no sci-fi, but there is a little bit of supernatural, so you would definitely enjoy watching it. What's the first thought? Oh my God, the dialogues are so long. That was the first thought. But then again, as it progressed, there are very few stories that you get to work on television which have such beautifully written dialogues. The delivery, kind of enhances the whole situation, and your character is enhanced because of it. You generally get to do such plays on the theatre, but never on TV, especially not me, I haven't. And it requires a lot of practice and a lot of we didn't have that much time to practice, but because the team was fantastic and I would ask them to send me all the longer monologues that I had prior to shooting, that I would learn them beforehand, so at least I would know what I am about to say, and then the enunciation and all the gestures would come later. But I have to say that the entire team was very, very helpful, from the ADs to the director to the producers. The producers were literally taking care of us like every second, because we were working in the midst of Ramzan, and it's quite hectic working in Ramzan, as you all know. Everything stops, everything, the timings all shifted. So the good part was that we would start right at Iftari and work till Sehri. And we were working in the outskirts of Islamabad, so it took us a long time to get back. But all in all, the effort that we put in the project, it will show when you see the episodes that I was a part. Any horror moment in my life? मैंने अल्लाह से बहुत दुआ की है कि मुझे कोई चीज़ ना दिखाए कि मेरा दिल छोटा सा फट जाए. लेकिन मैं अगर आपको अपने बारे में एक चीज़ बताऊं जो बहुत कम लोग जानते हैं, मुझे बचपन से फील होता है कि मैं कोई मीडियम हूँ. चीज़ें मुझे नज़र नहीं आती, लेकिन मुझे फील होती है. अगर मैं किसी घर में जाऊँ और मुझे कोई फीलिंग आए, तो मतलब ऐसा लगता है कि कुछ हैवीनेस है, और मेरी बैक पे, मेरी पीठ पे छोटे छोटे खराशें आ जाती हैं. जहाँ पे मेरा हाथ नहीं जाता उस जगह पे, तो वो कौन खराशें मारता होगा. सो आई मेट समवन हु वाज स्पिरिचुअल, और फिर मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा इस तरह से मेरे साथ होता है, और मैं ख्वाब में भी आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए उठती हूँ, क्योंकि मुझे आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट दीज थिंग्स. सो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, आप मीडियम हैं. आपको जो है वो इल्हाम हो जाते हैं और एहसास हो जाता है अगर कोई सुपर नेचुरल प्रेजेंस मौजूद है. बट अल्लाह का शुक्र है, नज़र कभी नहीं आएगी. बहुत करम है, वरना मैं अभी यहाँ पे आपके सामने नहीं बैठी हूँ. एनी फनी मोमेंट ऑन सेट? फनी तो मतलब मेरी वजह से वैसे ही हो रहे होते हैं, बिकॉज मुझे कोई चीज़ सीरियस नहीं लगती. आई कांट टेक थिंग्स सीरियसली, बट ऑन द टॉप ऑफ माई हेड आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग वैसे. हाँ, एक दफ़ा चुपकली आई थी इस सेट पे, एक दफ़ा. अच्छा, एक और चीज़ जो शायद आप लोग जानते हो, अगर आपने हंसना मनाया देखा होगा तो आपको पता होगा, मुझे छुपकलियों से डर नहीं लगता. मतलब डर की बात तो दूर की है, मुझे छुपकलियाँ बचाने का शौक है. आई डोंट वांट पीपल टू मर्डर देम, बिकॉज दे आर लिविंग क्रीचर्स एंड आई फाइंड देम क्यूट. सॉरी, नॉट सॉरी. सो एक दफ़ा छुपकली आ गई थी, और सारी ख़वातीन मर्द एक जैसे सब चीखम चाहक चिल्ला रहे, कूद रहे. वो छुपकली उनसे ज़्यादा डर गई थी, और मैं सिर्फ एक कोने में बैठी हुई थी. मैं कहा भाई भागना बंद करो, वो चली जाएगी. मतलब तुम लोग इतना जो उछल कूद कर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला. So that was one funny moment for me. I don't think it was funny for them, but for me it was funny. इस वाले सेट पे कौन entertaining था? You are talking to me like I don't think anyone else was that entertaining. Mostly किसी ना किसी को कोई ना कोई इशू से, बिकॉज रात भर की शूट थी और कुछ ना कुछ मसला चल रहा होता था. So मैं अपने आप को खुद एंटरटेन करती हूँ. मुझे गाना भी गाना आता है, मुझे सारे जोक्स भी रात को याद आ रहे होते हैं, मुझे कुछ सीरियसली काम भी नहीं करना होता. नहीं, काम मैं सीरियसली करती हूँ. हिम्मत कहें कि मुझे कोई कास्ट नहीं कर रहा हो, क्योंकि आई एम जस्ट नॉट समवन हु इज अपटाइट अबाउट थिंग्स. So yeah, I don't need anyone. Honestly, stories.
स्टोरी इज़ एक्सट्रीमली यूनिक और जिस तरह से इनको पिक्चराइज किया गया है प्रोडक्शन में जो है वो फुल टॉस पैसे लगाए गए हैं, आपको नज़र आएगा उसकी वैल्यू। कपड़े हो गए, मेकअप हो गया, लुक हो गया और एक और चीज़ भी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, कास्टिंग बहुत अच्छी है। बिकॉज जनरली प्रॉब्लम्स जो है वो प्रोडक्शंस में आती है जब कास्टिंग सही नहीं हुई होती। वो ये होता है कि आप मुझे फ़ोन आया कि आपके पास डेट्स नहीं है तो सजल को फ़ोन चला जाएगा और मैं और सजल कम्प्लीटली डिफरेंट लोग हैं। सो कास्टिंग बहुत प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है किरदार के हवाले से, वो बहुत अच्छी। देखिए नाज़रीन, सिया सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ है जो आपने नहीं देखी होगी, आई एम श्योर आपको यूट्यूब पे दिख जाएगी, लेकिन जब वो आ रही होती है स्क्रीन पे उसको देखने का मज़ा ही और होता है क्योंकि उससे पहले किसी और ने देखी नहीं होती। सो लोग आपको ये भी नहीं बता सकते कि इसमें इस कहानी में होने क्या वाला है। यू नो हाउ पीपल आर, वो गलत आपको बातें बता के जो है ना छोटी छोटी जो है वो चीज़ें बता के आपके लिए कहानी ख़राब कर देते हैं। तो जी, मौका हाथ से जाने मत दें। ये आती है सैटरडे और संडे को 9 to 10 ओनली ऑन ग्रीन चैनल। सो प्लीज़ सेट योर टाइमर्स ऑन। जब भी मेरा एपिसोड आएगा ज़रूर देखिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे वाले एपिसोड्स का नाम जो मेरी वाली कहानी का नाम जो है वो बरअक्स। होप टू सी यू गाइस।